guest speaker, Mr. Qamar Malik, teachers and students, Assalamu alaikum. How are you, students? Are you not lucky that we are having the color day on Thursday? Okay, this is going to be a very important seminar. I hope you will pay the keen attention to understand a very important aspect. Humanity has gone through various ages. There was the wandering age when the humans kept on moving around the 24 hours, 7 days, 365 days of the years in search of food and water. They kept on moving. Then the age changed, that the man started farming. They started cultivating crops, and they started living in the groups, in the caves. Then the lot of time passed, and we got the industrial revolution. Industry came into the use of man, and we got the bulk production of our needs. Then there was the marketing era, then was the sale era and marketing era. Then by the end of this last century, we have seen a tremendous revolution in the human history. That was the computer, IT technology. And now we are going through artificial intelligence era, where we are going to see the cars without drivers, where we are going to see no currency papers. We are going to see a lot of changes in the medical field. We are going to see many such changes that we have never imagined before. And yesterday I mentioned that something new Zuckerberg is going to give us, and that is Metaverse, that he is going to create the virtual world, a parallel world which is named virtual world. How many changes are going to come into our lives? How many changes you are going to see in your lives? The changes are going very rapidly. Very rapidly the changes are coming. So we are to equip ourselves to cope with these changes. We are to learn new skills. We are to be ready to absorb the changes so that we can be better, we can live the better life, we can be successful in this changing world. To speak on this topic, we have invited Mr. Qamar Malik. He is a chartered management accountant. He is based in Dubai. He has arranged several seminars. I have seen the profile at the international level. He is a good speaker as well as he has organized various seminars for the international guests. He is running Toastmaster Club in Dubai, UAE, Abu Dhabi. He has kindly accepted our invitation, and I request you, all of the students, please stand up and clap to say him welcome. Welcome, sir. Bismillahirrahmanirrahim. First and foremost, I'm very thankful for a generous introduction. Dear respectable director of the institute, respectable honorable teachers, very wonderful students, Assalamu alaikum. As you know, my name is Qamar. I'm here to discuss with you, to talk from heart to heart about the skills which you need in the near future, because this world is changing very rapidly, as respectable director already explained, that
We have passed through many revolutions. There was industrial revolution, information age revolution, social age revolution, and we are going through the next revolution, that is about the artificial intelligence. आज मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा उसमें ज़्यादातर यही है कि जो हमारा नेक्स्ट रेवोल्यूशन आने वाला है उसमें आपको कौन सी स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी और आप उन स्किल्स को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, वो आप गेन कहाँ से कर सकते हैं ये स्किल्स। अभी जो करंटली हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल एज है, जो आपकी सोशल एज है, इसमें ज़्यादातर जो किरदार है वो सोशल मीडिया का किरदार इस वक्त बहुत बढ़ गया है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। जो भी आप बाकी चीज़ें हैं, जो मार्केटिंग के हमारे टूल्स हैं, जो हमारे इवन के हमारा जो दूसरा नॉर्मल मीडिया है, उससे भी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है इस वक्त वो सोशल मीडिया है। लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला है वो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टोटली रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय द मशीन्स। जो काम आज ह्यूमंस कर रहे हैं वो सारे के सारे काम कल मशीन्स करेंगी, जिसमें इंक्लूसिव ऑफ टीचिंग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, पायलट्स, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट तमाम जो बेसिक्स हमारे पेशे हैं ये रिप्लेस कर देंगी मशीन्स। तो देन क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये सारे काम मशीनों ने करने हैं तो इंसानों ने क्या करना है? तो इंसानों का ये काम है कि उन मशीनों को बनाना, उन रोबोट्स को बनाना और उनको इम्प्रूव करना, क्योंकि मशीन्स जो हैं वही काम कर सकती हैं जो उनमें प्रोग्राम जो है वो सेट हो गए हों। जो क्रिएटिविटी है, जो उसमें इनोवेशन है, वो इंसानों ने लेके आनी है। उसके लिए जो आपको अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर के लिए, वो ये है कि अब जो करंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की, उसमें यह है कि जो हमारे जो प्रोफेशंस हैं वो जो नीचे जा रहे हैं और जो प्रोफेशंस ऊपर जा रहे हैं। फ्यूचर में जो प्रोफेशंस ऊपर जाएंगे, फ्यूचर में जो प्रोफेशंस ऊपर जा रहे हैं दैट इज़ डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PRA जिसको पर्सनल रोबोटिक ऑटोमेशन कहते हैं, और ये सारे जो है जो रिलेटेड टू IT हैं। और जो हमारे नीचे जा रहे हैं उसमें लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इवन के जो बेसिक लेवल के डॉक्टर्स हैं। तो व्हेन यू एम फॉर, मतलब जब आप बड़े होंगे, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे होंगे, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पेशा अख्तियार करें जो आपके लिए जो ज़्यादा जिसमें आप इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू एम फॉर टू बी ए डॉक्टर, डोंट ट्राई टू बी ए नॉर्मल डॉक्टर, क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे मशीन से। इवन कि आपको जो नॉर्मल मेडिसिन लेने के लिए हो सकता है डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। कुछ ऐसे आपके हो सकता है जिस तरह वॉच लगी हुई है, वो वॉच ही आपको बता देगी कि इसमें आपका क्या आपको डिज़ीज़ क्या है और इसकी रेमेडी क्या है और इसकी मेडिसिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके स्टोर से, या स्टोर्स भी आपके घर पे आ जाएंगे। तो आपने फिर स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन में भी हाई लेवल स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है। इसी तरह फ्यूचर जो है, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट IT, क्योंकि IT के अलावा जो है वो बाकी ठीक है बाकी लोग भी काम करेंगे, लेकिन हर जो प्रोफेशन है वो IT के साथ मिलके काम करेगा। तो इसमें आप जो मेजर जो है वो डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस, और इसमें हमारे पास हैं रोबोटिक्स, ये चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में हमारे लिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। और उसमें डेफिनेटली जो बेस है वो आपकी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, यही चीज़ें होंगी, लेकिन जो टॉप की होंगी वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए आज आपके जहन को ये तैयार करना, आज के जो बात करने का मकसद ये है कि आज जब आप बैठे हुए हैं, जब आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज आपको पता होना चाहिए कि आपने फ्यूचर में जाके किस फील्ड में किस तरफ जाना है और कौन सा एरिया आपने चूज़ करना है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, आपकी माइंड की क्लैरिटी आ जाए कि आप जो करने जा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव भी होगा कि नहीं। क्योंकि अगर कोई आप ऐसा पेशा अख्तियार कर लेते हैं, लेट्स सपोज ऑडिट, मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में जाते हैं, आप BCom, ICom इस तरफ चले जाते हैं, तो ये टू बी वेरी हॉनेस्ट ये फ्यूचर में जो है ऑब्सलीट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें बड़ी आपको जहानत से जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज एक और बात करता हूँ, हमारे यहाँ जो वर्कशॉप्स हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप्स हैं, जिस तरह अभी डायरेक्टर साहब ने बात की कि आपके पास जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी ऑटोमेटेड हैं, ड्राइवरलेस कार्स हैं। अब वो ड्राइवरलेस कार सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर्स को रिप्लेस कर देंगी, उसमें आपकी जो मेंटेनेंस है वो भी तकरीबन 60-70% रिप्लेस हो जाएगी। तो आपकी जो ये मैकेनिकल के चीज़ें हैं वो भी रिप्लेस हो जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये तो था इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स।
दूसरी तरफ मैं एक और बात करना चाहता हूँ आपके साथ, जो असातिज़ा के लिए भी ये बड़ी इफ़ेक्टिव होगी कि हमारे जो चूँकि मैं यूएई में रहता हूँ, तो पाकिस्तानियों के मतलब कि कौन सी हमारी स्किल्स हैं जो लैक करती हैं और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके जो हमारे पैरेलल स्किल्स जो हैं वो बेहतर हैं हमसे, उसमें जो है एक वर्क एथिक्स है। वर्क एथिक्स क्या है कि हमारे यहाँ एक डायलेमा है, ये स्पेशली असातिज़ा से मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डायलेमा ये है कि जब तक हमें कोई काम कहा ना जाए हम उसको जो है वो करते नहीं हैं, वो कंप्लीट नहीं करते, या हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते। हमारे से जो दूसरी नेशंस हैं, जिस तरह के यूरोपियन हैं या दूसरे हैं, उनके इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जो है वो एक ओनरशिप का उनका एटीट्यूड होता है। हमारा जो एटीट्यूड होता है ये है कि जो काम हमें क्या कहा जाएगा हम सिर्फ वही काम करेंगे। उसके अलावा एक और एटीट्यूड है, ये सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ये अब टेक्निकल स्किल्स नहीं, एक और एटीट्यूड है वो है कस्टमर सर्विस का एटीट्यूड। वो वहाँ पे जो भी उनका बंदे, जो हमें दूसरी नेशंस हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो लोग बैठे होते हैं उसमें वो एक कस्टमर सर्विस एटीट्यूड के साथ बैठे होते हैं। इवन कि अगर कोई अकाउंटेंट है तो आप कहें कि अकाउंटेंट्स का क्या काम है कस्टमर सर्विस के साथ, उनके अकाउंटेंट्स भी ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जिस तरह के वो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को, कंपेयर टू अस जो पाकिस्तान में कि हम लोग समझते हैं कि हमारा यही जॉब है और हमने यही करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम की हम लोग यहाँ पे अहमियत नहीं देते। जो इंटरनेशनल लेवल पे टाइम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जो टाइम किसी ने, जो मीटिंग के टाइम्स हैं जो सेट किया हुआ है टाइम, उसी वक्त लोग आते हैं और उससे डेविएट नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अगर कोई टाइम किसी को दिया 8 बजे का तो हम 8:15 पे ना जाएं तो हम समझते हैं ये हम 8 बजे चले जाएं हमारी तौहीन हो गई है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट सिर्फ यही नहीं कि आपने टाइम पे पहुंचना है, टाइम मैनेजमेंट ये भी है कि जो टाइम आप जिस टाइम पे आपने ख़त्म करना है उस टाइम पे उसको फिनिश भी किया जाए और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्लान्ड हो, एजेंडा हो, उसके मुताबिक जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ पे अहमियत नहीं दी जाती, ना हमें पढ़ाया जाता है ना हमें सिखाया जाता है। तो एक और चीज़ है लीडरशिप में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है लेकिन आजकल ज़रा मार्केट में ज़रा इन है इमोशनल इंटेलिजेंस मीन के आपने बिहेव करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त शायद आपको ये चीज़ें कुछ ऐसी लग रही हों कि हला में बातें लग रही हों, लेकिन यही चीज़ें फ्यूचर में जाके जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे तो यही चीज़ें आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी और यही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू वेरी मच।